एरिक्सन स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो एरिक्सन ने ये थ्योरी दी है कि कैसे एक बच्चा सोशली कैसे डेवलप होता है। हमने कर लिया कॉग्निटिव डेवलपमेंट कर लिया बच्चे का, ठीक है, मोरल डेवलपमेंट कर लिया है, और ये है साइको सोशल डेवलपमेंट। इसमें है कि बच्चे का बेसिकली सोशल डेवलपमेंट के बारे में है कि उसने जैसे बड़ा होता है तो उसका सोशल डेवलपमेंट कैसे होता है। So Erickson's stage of psychosocial development, as articulated in the second half of the 20th century by Erickson in collaboration with John Erickson, is a comprehensive psychoanalytic theory that identifies a series of 8 stages that a healthy developing individual should pass through from infancy to late childhood. Erickson published a book called Childhood and Society around 1950s that transpired his research on the 8 stages of psychosocial development. Erickson was originally influenced by Sigmund Freud's psychosexual stages of development. He originally worked on improving Freud's theories. However, as he began to dive deeper into biopsychosocial development and how other environmental factors affect human development, he soon progressed past Freud's theory and developed his own ideas. तो एरिक्सन ने एक साइकोसेक्सुअल जो स्टेजेस हैं, सिगमंड फ्रूड की थ्योरीज थी, ठीक है, तो उसको उस पर वर्क करते हुए उसने अपनी एक थ्योरी दी है जो कि सोशल डेवलपमेंट में है। उसके उस थ्योरी के भी कुछ आइडियाज हैं, लेकिन उसने अपने आइडिया भी उसमें डेवलप किए हैं। सो एरिक्सन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। तो इससे पहले आपने जब भी ये सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी आएगी तो सबसे पहले आपने जो लिखना है वो मीनिंग लिखना है। What is social development? So आपकी जो बुक में है काफी सारी definitions है, उसमें से 2-3 definitions लिखनी है। Like Sorensen states that by social development we mean the increasing ability to get along well with oneself and others. ऐसे ही हर्लॉक ने कहा है, हर्लॉक defines social development as the attaining of maturity in social relationship. ऐसे जो गैरेट है, he says that socialization or social development is the process whereby the biological individual is converted into human person. So इतनी सारी definitions के बाद आप यही लिखोगे कि meaning of social development that it means the acquisition of the ability to behave in accordance with social norms, customs, mores and expectations. So here it comes with the ability to cooperate with others, ability to tolerate the views of others, ability to adjust to members of various social groups, ability to take interest in others, ability to make friends, sense of competition, group loyalties, belongingness, and social acceptance. So this is socialization, and social development has 2 aspects, that is socialization and expansion of social horizon. So socialization क्या है कि individual develops into a functioning member of the group, acting according to the standards, कन्फर्म्स, और जो भी उसके जो रूल्स हैं उसमें वो अपने आप को एडजस्ट करने के लिए उस सोसाइटी का में वो एडजस्ट करने के लिए अपने आप को सोशलाइज करता है, ठीक है। और एक्सपेंशन ऑफ सोशल हॉरिजन में आ जाएगा कि वो मिक्स करता है दूसरे ग्रुप्स में भी, कोई लार्जर ग्रुप्स हो और बड़े ग्रुप्स हो तो उसमें भी वो वहां जाके मिक्स होता है। सो हियर इट कम्स द एरिक्सन देन स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। सो इसमें एजेस दे रखी हैं, इन्फेंट टू 18 मंथ्स में साइको सोशल क्या टास्क होता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, और वर्च्यू जो डेवलप होता है वो होती है होप। देन 18 मंथ से 3 इयर्स ऑटोनॉमी वर्सेस शेम होता है, वर्च्यू जो विल होती है, विल पावर डेवलप होती है। देन 3 to 5 इयर्स इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, इसमें पर्पस डेवलप होता है। 5 to 13 इयर्स में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, इसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप होती है। Then 13 to 21 years identity versus confusion, जिसमें fidelity develop होती है, and 21 to 39 years intimacy versus isolation, इसमें love develop होता है, and then 40 to 65 years generativity versus stagnation, इसमें care develop होती है, and 65 and older age में integrity versus despair means इसमें wisdom develop होती है. So how this virtues develop according to your age? तो जो हम काम करते जाते हैं हमारी लाइफ में, किस तरह से हम सोशली डेवलप होते जाते हैं, उस तरह से ये सारे वर्चुअस डेवलप होते हैं। सो फर्स्ट इज होप, दैट कम्स ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट।
तो इसको हम ओरल सेंसरी या इन्फेंसी या अंडर 2 years of age कहते हैं. The first stage of Erik Erikson's theory centers around the infant's basic needs being met by the parents or caregiver and how this interaction leads to trust or mistrust. Trust, as defined by Erikson, is an essential trustfulness of others as well as fundamental sense of one's own trustworthiness. तो ये जो स्टेज ऑफ ट्रस्ट है, ये यहाँ तो बच्चे में ट्रस्ट डेवलप होगा या मिसट्रस्ट डेवलप होगा. अगर बच्चे के इनिशियल जेल को अच्छे से हैंडल ना किया जाए, लाइक बच्चे को मदर की एब्सेंस फील हो जब उसको बहुत ज्यादा जरूरत हो, लाइक उसे भूख लगी है तो लेकिन मदर इज नॉट देयर टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ द चाइल्ड, तो क्या होगा कि वो और भी ज्यादा उसे मिसट्रस्ट हो जाएगा कि जब उसे नीड है देन शी इज नॉट देयर. तो इस तरह से अगर बच्चे की हैंडलिंग अच्छे से नहीं होती तो उसके अंदर एक बहुत ही इनसिक्योर और मिसट्रस्ट जो वाली फीलिंग है वो डेवलप हो जाती है. सो राइट फ्रॉम द 2 years बच्चे के अंदर मदर और पेरेंट्स जो भी है उनको बहुत, आपने देखा होगा, बहुत ज्यादा सेंसिटिवली केयर करते हैं कि थोड़ा सा भी बच्चा रोए ना, कहाँ से प्रॉब्लम है, तो वही इमीडिएट उनको फीडबैक देते हैं. वॉट एवर द पर्सन द चाइल्ड नीड्स, उसको उसमें भूख लगी है तो उसे फीड देंगे, उसको पॉटी आई है तो उसको वॉश करेंगे. सो एक छोटे छोटे स्टेप्स की केयर की जाती है. सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज. उसी में उसका जो केयर टेकर है या मदर है जो भी उसकी केयर कर रहा है उसके प्रति उसके अंदर जो फीलिंग है टू ट्रस्ट अदर वो डेवलप होती है. देन कम विल, दैट इज स्टेज ऑफ ऑटोनॉमी. सो इसमें जो डेवलप होगा बच्चा ऑटोनॉमी वर्सेस शेम और डाउट. इसमें टॉडलरहुड एज आ जाती है 2 to 4 years. इसमें क्या होता है, as the child gains control over eliminative functions and motor abilities, they begin to explore their surroundings. Parents still provide a strong base of security from which the child can venture out to assert their will. The parents' patience and encouragement help to foster autonomy in the child. Children at this age like to explore the world around them and they are constantly learning about their environment. तो इसमें क्या है कि ऑटोनॉमी में क्या आ जाएगा, जब इस स्टेज में आते हैं, एक फ्रॉड की एनल स्टेज है जिससे बच्चों को हम टॉयलेट ट्रेनिंग करना सिखाते हैं. ठीक है, अगर वो अच्छे से वेल मैनेज्ड है और उस स्टेज को वो कॉन्कर कर लेता है तो जब भी लाइक क्या कहते हैं, जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग है तो वो टॉयलेट में जाएगा या ही विल टेल द मदर कि दैट उसे टॉयलेट आई है, इनफैक्ट वो पैंट्स में ही टॉयलेट कर दे. अगर वो उसकी ट्रेनिंग हो गई है तो उसके अंदर कोई शेम वाली फीलिंग नहीं आएगी. लेकिन अगर उसकी ट्रेनिंग नहीं है, वो अपनी विल को, अपने अंदर की जो पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, अपनी बॉडी को, अपनी मोटर स्किल्स को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो उसके अंदर एक डाउट वाली, एक शेम वाली फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी. तो इस तरह से बच्चे के अंदर क्या विल आ रही है ये पेरेंट्स को नोटिस करनी है, वो अपनी बॉडी सिस्टम को कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो उसकी ट्रेनिंग पेरेंट्स को देनी है. तो उससे क्या है कि उनके अंदर कोई भी शेम या कुछ भी इस तरह की फीलिंग नहीं आती है. So at this stage, children develop their first interest. For example, a child who enjoys music play like with the radio. So next is purpose, is initiative versus guilt. So this is initiative stage, that locomotors, genital, early childhood, that is from 5 to 8 years. Initiative adds to autonomy the quality of planning, undertaking and attacking a task for the sake of just being active and on the move. The child is learning to master the world around them, learning basic skills and principles of physics. Like जो ये इनिशिएटिव स्टेज में क्या होता है कि बच्चा कुछ भी काम करना जब लगता है तो हर चीज में अब देखता है अपने इन्वायरमेंट को, तो उसमें इनिशिएटिव लेना शुरू कर देता है. ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं, उसकी बहुत सारी स्किल्स डेवलप होती हैं. He learns to cooperate, he learns to how to lead the other persons. ठीक है, और वो थोड़ा सा fearful भी हो जाता है और वो लेकिन बड़ों पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि वो उनसे लर्न कर रहा होता है, और जो भी रिस्ट्रिक्शन है सोशल की या कुछ भी उसको थोड़ी समझ आनी शुरू हो जाती है. तो जैसे वो इनिशिएटिव लेता है तो उसके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है क्योंकि हर चीज में वो इनिशिएटिव लेता है. लेकिन अगर वो किसी चीज में इनिशिएटिव नहीं लेगा और उसके अंदर कोई स्किल्स नहीं होंगी और बाकी बच्चे जो उससे आगे निकलते जाएंगे तो उसके अंदर थोड़ा गिल्ट आना भी शुरू हो जाएगा दैट ही कैन नॉट डू सच थिंग्स. So things fall down, not up. Wrong things roll. They learn how to zip and tie, count and speak with ease. At this stage, the child wants to begin and complete their own actions for a purpose.
Guilt is a confusing new emotion. They may feel guilty over things that logically should not cause guilt. They may feel guilt when this initiative does not produce desired results. तो वही अगर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा तो उनके अंदर थोड़ा गिल्ट आ जाता है कि शायद मैं नहीं ऐसे कर सकता हूँ या मैं बेकार हूँ, इस तरह की चीजें आगे भी शुरू हो जाती हैं. Within instances requiring initiative, the child may also develop negative behaviors. These negative behaviors are a result of the child developing a sense of frustration for not being able to achieve a goal as planned and may engage in negative behaviors that seem aggressive, ruthless, or overly assertive to parents. Aggressive behaviors such as throwing objects, hitting, or yelling are example of observable behaviors during this stage. तो वही बात है कि इसमें बच्चा इनिशिएटिव लेता है तो उसमें भी पेरेंट्स को बहुत सपोर्ट करना होता है कि वो जो भी किसी भी चीज में इनिशिएटिव ले तो उसमें उसके थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आने चाहिए. अगर वो बिल्कुल नेगेटिव रिजल्ट आ जाते हैं तो वो बहुत डिप्रेस और बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है जिस कारण थोड़ा नेगेटिव भी वो बिहेव कर सकता है. तो उस नेगेटिव बिहेवियर ना आए तो इसीलिए उसको इनिशिएटिव जो ले रहे हैं तो उसको इंडिपेंडेंटली करने दें लेकिन विद फुल गाइडेंस एंड सपोर्ट मस्ट बी देयर. Then comes competency, that is stage of industriousness. तो इसमें इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है बच्चे में आएगा. सो ये लेटेंसी मिडिल चाइल्डहुड दैट इज फ्रॉम 9 to 12 इयर्स के एज में होता है. तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है और वहां पर जाकर अगर वो बहुत मेहनत करता है किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए या किसी भी एक्टिविटी को लेके तो उसमें मेहनत अगर करता है तो वो उसमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ सक्सेस पाएगा और अदरवाइज नहीं पाता तो उसके अंदर बाकी बच्चों के कंपैरिजन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है. तो इसमें चाइल्ड लर्न्स टू विन रिकॉग्निशन बाय बीइंग प्रोडक्टिव. कुछ भी नया प्रोड्यूस करके वो एक रिकॉग्निशन लेना चाहता है. सो वर्क जो भी काम करता है उसे अच्छा लगता है, प्लेजरेबल लगता है. ही लर्न्स टू प्रिजर्व आल्सो. सो द चाइल्ड does not feel competent in his skills or satisfied with his status among his peers in work skills, then he may develop sense of inferiority. अगर उसके खुद के अंदर नहीं है तो उसके अंदर फिर इनकॉम्पिटेंस या inferiority आ जाएगा. तो इसलिए वो जो भी काम करें फुल आपको सपोर्ट करना है कि जिसको उसमें वो सक्सेसफुल हो और उसकी सक्सेस से ही उसके अंदर का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. The aim to bring a productive situation to completion gradually supersedes the whims and wishes of play. The fundamentals of technology are developed. The failure to master trust, autonomy, and industrial skills may cause the child to doubt his or her future, leading to shame, guilt, and the experience of defeat and inferiority. The child must deal with demands to learn new skills, or risk a sense of inferiority, failure, and incompetence. At this stage, child might express their independence by talking back and being disobedient and rebellious. वही बात है जो मैंने आपको कही है कि इसमें यहाँ का बच्चा बहुत इंडस्ट्री मेहनत करेगा या फिर इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेगा. तो जैसे अगर आप किसी भी काम पे थोड़ी मेहनत करते तो उसमें आपको कुछ ना कुछ डेफिनेटली जीत हासिल होती है. तो बच्चे को प्रॉपर उसके अंदर स्किल्स डेवलप हो ताकि उसकी जो पीछे की जो हमने देखी है शेम, गिल्ट, ये सारी चीजें ना आए. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स इन कारण भी आता है. तो वो सारी चीजों को अवॉइड करने के लिए उन्हें छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स या छोटी छोटी चीजें करवाते रहना चाहिए बच्चों को ताकि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप हो और वो आगे विन विन स्ट्रैटेजी से वो आगे बढ़ते जाए. At this stage, children start recognizing their special talents and continue to discover interests as their education improves. They may begin to choose to do more activities to pursue that interest, such as joining a sport if they know they have athletic ability, or joining the band if they are good at music. तो बच्चे के जनरली इंटरेस्ट हो जाते हैं. बच्चे कौन सी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, मे बी वो स्पोर्ट्स में है या म्यूजिक में है, ड्रामा में है या फिर कंप्यूटर्स में है. इट ऑल डिपेंड्स. तो उसमें पेरेंट्स भी आइडेंटिफाई करेंगे और बच्चे खुद भी उस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे. तो वैसी चीजों में बच्चों को और एक्सपोजर दें और उनका कॉन्फिडेंस और डेवलप करें. Then comes stage of fidelity, that is identity versus role confusion. So इसमें adolescence age आ जाती है, that is 12 to 19 years. इसमें उनका रोल डिफ्यूजन होता है क्योंकि वो ग्रो कर रहे होते हैं. दैट इज द टाइम ऑफ प्यूबर्टी. चाइल्डहुड पीछे रह गया होता है एंड देयर ट्रांजिशन फेज आ रहा होता है, अडल्टहुड की तरफ जा रहे होते हैं. तो उनको अपनी जगह ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाने का होता है.
अपना सेल्फ कंसेप्ट के बारे में होता है। वो चाहते हैं कि जो उनके दिमाग में आइडियाज हैं लोग उनके साथ कॉरेस्पॉन्ड करें। ठीक है, वो आंसर्स ढूंढना चाहते हैं कि हु एम आई, हमारा रोल क्या है, इस तरह की चीजें हैं, हम वर्ल्ड में क्यों आए हैं। तो ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उनको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ना वो बच्चे हैं ना वो अडल्ट है, ना उनकी बातों को मानता है। अगर वो कुछ आंसर भी देते हैं तो उस आंसर को इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता। सो एक आइडेंटिटी पाने के लिए उनके अंदर बहुत ज्यादा वो होता है। So the adolescent is newly concerned with how they appear to others. Superego identity is the occurred confidence that the outer sameness and continuity prepared in the future are matched by the sameness and continuity of one's meaning for oneself, as evidenced in the promise of career. The ability to settle on a school or occupational identity is present. In later stages of adolescence, the child develops a sense of sexual identity. As they make the transition from childhood to adulthood, adolescents ponder the roles they will play in the adult world. तो वही है कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसको यही हो जाता है कि वो जब बड़ा होगा तो वो कौन से रोल्स प्ले करेगा। ठीक है, तो इसलिए वो काफी कंसर्न होता है इस चीज को लेकर। Eventually, Erikson proposed most adolescents achieve a sense of identity regarding whom they are and where their lives are headed. ठीक है, the teenager must achieve identity in occupation, gender roles, politics, and in some cultures, religion. तो इसमें टीनेजर ने अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है कि वो उन्होंने ऑक्यूपेशन क्या पाना है, उनके जेंडर रोल क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, कल्चर क्या है, जहाँ वो रह रहे वहाँ का रिलीजन क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं उनको डिस्टर्ब भी करती हैं और वो काफी चीजों में चेंज भी करना चाहते हैं। देन कम्स लव, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। ये जो स्टेज है इसको हम स्टेज ऑफ इंटीमेसी भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 20 से लेके 39 इयर्स की एज तक होती है। द इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन कॉन्फ्लिक्ट अकर्स अराउंड द एज ऑफ 30। जैसे ही बच्चा जो इंडिविजुअल इस एज में आता है तो उसको हम 6 स्टेज कहते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। या तो वो एक बहुत ही रिलेशनशिप में होता है, ठीक है, या फ्रेंडशिप है या मैरिज है, काफी इंटीमेट रिलेशन होता है जिसमें वो अपने हर चीज को डिस्कस करता है एंड उसे अपनी आइडेंटिटी का भी पता होता है। ठीक है, और जो भी सिचुएशंस चल रही होती है उसको ये भी होता है कि मेरी जो आइडेंटिटी वो लूज ना हो। और जिस तरह से उसकी लाइफ चल रही होती है, लाइक उसकी मैरिज हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, सो ही इज कनेक्टेड टू द फैमिली। लेकिन अगर ये सब चीजें नहीं है उसकी लाइफ में, मैरिज नहीं है, बच्चे नहीं है, तो फिर क्या होगा, आइसोलेशन होगी। मीन्स देर इज नो फ्रेंड, नो वन क्लोज टू दैट पर्सन। वो अपने आप को बहुत ही आइसोलेटेड फील करेगा। तो इसलिए ये जो स्टेज है इसमें ये द पर्सन नीड्स अ वेरी इंटीमेट पार्टनर, चाहे वो फैमिली में है चाहे फ्रेंडशिप में है, कोई ऐसा पर्सन या कोई ऐसे मेंबर उसकी लाइफ में हो जिसके साथ वो कॉन्स्टेंटली अपनी हर राइट रॉन्ग सुख दुख सब शेयर कर सके। सो दैट at this stage they need a intimate partner. So the intimacy versus isolation conflict occurs around the age of 30. At the start of this stage, identity versus role confusion is coming to an end. क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी बना चुका होता है, अब वो एक इंटीमेट लाइफ में जीने के लिए आगे बढ़ता है, though it still lingers at the foundation of the stage. So young adults are still eager to blend their identities with their friends because they want to fit in. Erikson believes that people are sometimes isolated due to intimacy. People are afraid to rejections, such as being turned down or their partners breaking up with them. Human beings are familiar with pain, and to some people, rejection is so painful that their egos cannot bear it. Erikson also argues that dissatisfaction occurs with intimacy. Dissatisfaction is the desire to isolate or destroy things that may be dangerous to one's own ideals for life. This can occur if a person has their intimate relationship invaded by outside. तो वही है, आपने देखा होगा कि इस एज में जनरली मैरिजेस हो जाती हैं एंड द पीपल आर विद देयर राइट इंटीमेट पार्टनर्स, तो वो हर अपनी जो भी लाइफ को डिस्कस करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और अगर नहीं जिनकी मैरिजेस होती हैं या नहीं तो उनकी लाइफ में कोई पार्टनर है, देन दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा और अपनी लाइफ में काफ़ी कई बार नेगेटिव साइड चले जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। और
बेसिकली जो हमारी लाइफ का जो ग्राफ चलता है वो इस एज तक दे नीड अ इंटीमेट पार्टनर ओनली. If people cannot form these intimate relationships, perhaps because of their own needs, a sense of isolation may result, arousing feelings of darkness and dust. ठीक है, तो थोड़ा से वही isolated हो जाना feel करते हैं. Then comes care, generativity versus stagnation.